تنہا اکیلی ہوں میں ایک پہیلی ہوں. اس نے میری طرف دیکھا کیوں نہیں؟ کیا اتنی بری دکھتی ہوں میں؟ کیا ہے ایسا جو اس کی بیوی میں ہے اور مجھ میں نہیں؟ تنہا اکیلی ہوں میں ایک پہیلی ہوں. ندی کا میں پانی ہوں، گزری کہانی ہوں، بیتے سمے کی صدا. کوئی سنے تو ذرا تنہا اکیلی ہوں میں ایک پہیلی ہوں. I am very sorry. It's okay. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. کون سا سوال؟ یہی کہ کیا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ میں مرد اور عورت کی دوستی کی قائل نہیں. ان دونوں کے درمیان یا تو محبت ہو سکتی یا پھر نفرت. کم از کم میری زندگی میں تو یہی دو جذبے ہیں. میرے خیال میں مرد اور عورت میں دوستی ہو سکتی. کیا آپ اس سچ کے ساتھ دوستی کریں گے کہ میں آپ سے محبت میں؟ ہاں، کر سکتا ہوں. مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے لیے میرے کیا جذبات. میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں آپ کے بارے میں کیا سوچتا. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے جس سے آپ نے محبت کی ہو اور جب آپ نے آپ کو دوستی کی؟ پلیز یہاں روک دیجیے. اسی بلڈنگ میں میرا آفس. آپ کو دوست مان لیا اس لیے آپ سے نہیں چھپاؤں گا. جی، میری زندگی میں کوئی ایسا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اور بدلے میں وہ صرف مجھ سے دوستی کرتا. جب آپ نے اپنے ہی شوہر کے خلاف گواہی دی تھی، سرمد شاہ زیب کی وائف ہے نا، کورٹ روم میں دیکھا تھا آپ کو، تو اب کیا کہنا ہے آپ کو؟ کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی؟ میں نادیہ کے قتل کی چشمدید گواہ. کون نادیہ؟ نادیہ اسلم؟ بلکہ آپ کی ہیلپ کرنے آئی ہوں. وہ قتل میرے سامنے ہوا تھا اور سرمد شاہ زیب نے یہ قتل کیا. مجھے نادیہ قتل کیس میں وعدہ معاف گواہ بننا ہے. ایک منٹ، یہ خیال آپ کو 7 سال بعد کیوں آیا؟ شروع سے بتائیے. سرمد کو گرفتار کروانے والی بھی میں ہوں، آپ یہاں نہیں تھے. 7 سال پہلے شاید مجھ پہ اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں سرمد کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے خلاف گواہی دے سکتی. جی، مجھے یہاں ٹرانسفر ہوئے 6 مہینے ہوئے. اس رات کیا ہوا تھا؟ میں جو بیان ابھی دے رہی ہوں آپ کو، عدالت میں یہی دوں گی.
السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ موما کہیں جا رہی ہوتی ہے تو وہ اسے آواز لگاتا ہے، جس کا نام آرا ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بھی آفس کی طرف جانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ وہ کہتا ہے مجھے واقعی بہت افسوس ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے اس بات پر کافی زیادہ افسوس ہے۔ مجھے ان الفاظوں کے ساتھ آپ کو مخاطب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو میں نے آپ سے الفاظ کہے ہیں ان الفاظوں پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس وقت میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا ہے۔ مجھے ایسا بالکل نہیں بولنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر وہ خاتون کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو جاتی ہیں اور اپنی خاموشی توڑنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے تم نے اچھی بات کی ہے، تم نے جو بھی کہا ہے ٹھیک کہا ہے، تم نے اچھا کیا کہ مجھے میری جگہ دکھائی ہے۔ ہاں، یہ سن کر وہ شخص مزید شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے کہ آخر میں نے ان سے کون سے ایسے الفاظ کہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اچھا کہا ہے، بلکہ یہ تو کہہ رہی ہیں کہ میں نے انہیں اپنی اوقات دکھا دی ہے۔ کیسی اوقات؟ بھلا میں نے تو ان سے کچھ ایسے الفاظ بھی نہیں کہے جن کی وجہ سے ان کی کافی تذلیل ہوئی ہو۔ وہ خاتون اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے بہت سالوں بعد میں نے کسی سے سچی بات کہی ہے۔ ہاں، یہ بات میں آپ سے کہہ دوں، میں کلاؤڈ 9 پر تھا۔ شکریہ، تم نے میرے پروں کو کاٹ دیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کچھ دیر کے لیے تو سن سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ابھی بھی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر یہ خاتون مجھ سے چاہتی کیا ہے، آخر مجھ سے یہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس کا جسم سن سا ہو جاتا ہے اور وہ خاموشی کے ساتھ اس خاتون کی تمام باتوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ خاتون مزید اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے میں پھر کبھی کسی سے بھی سچی بات اور نہ ہی محبت کروں گی۔ یہ سن کر وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگتی ہے تو یہ شخص اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس خاتون سے کہتا ہے میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں نے آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ میرا ہرگز اس وقت یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کے جذبات کو میں روند ڈالوں۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ نے مجھ سے جو کہا ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں۔ مجھے بالکل آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آخر آپ کہنا کیا چاہ رہی تھی، لیکن میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جس کو آپ سمجھ رہی ہیں۔ جس کے جواب میں وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، جو بھی آپ نے کہا ہے، اگر کوئی اور بھی ہوتا تو وہ بالکل ایسا ہی کہتا۔ آپ ایک شادی شدہ ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس وقت مجھے یہی انداز اور اسی انداز سے منع کرتے۔ اور اسی کے ساتھ وہ کہتی ہیں کہ کم از کم کوئی آدمی کبھی نہیں سمجھ سکتا، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں، نہ میرا باپ، نہ میرا بھائی، نہ میری ماں اور نہ ہی میری بہن، حتیٰ کہ اپنے رشتے بھی مجھے سمجھ نہیں پائے اور نہ ہی میں انہیں سمجھا سکی ہوں۔ آج اگر میں یہاں پر ٹھہری ہوں تو اپنے بلبوتے پر ٹھہری ہوں۔ میرا ساتھ آج تک کسی نے نہیں دیا، ہر کوئی میرے خلاف کھڑا ہو گیا، ہر کوئی مجھے منع کر رہا تھا۔ اگر میں آج یہاں پر ٹھہری ہوں تو اپنے بلبوتے پر ٹھہری ہوں، مجھے کسی نے سہارا نہیں دیا۔ اگر مجھے سہارا دیا ہے تو وہ میں خود ہی ہوں، جسے میں نے خود کو سہارا دے کر آج اس مقام تک لایا ہے۔ وہ کہتی ہے نہ سرمد، نہ شاہجہاں، نہ تم، کوئی بھی نہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ میں بری عورت ہوں، سب یہی کہتے ہیں۔ میرے انداز، میری چال چلن لوگ دیکھتے ہیں تو مجھے یہی کہتے ہیں
कि मैं एक बुरी औरत हूँ, लेकिन मेरे अंदर से कोई वाकिफ नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। वो मज़ीद कहती है कि अकेली औरत पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है और आप भी उसी वक्त मुझ पर यही इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। आपने झूठ बोला है। जो भी आपने कहा है, पहले अकेली औरत को फतह करो, फिर उसे दुनिया की तरफ से लात मारने के लिए तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है। यहाँ पर आरा उसे अपने चंगल में फंसा रही होती है और वो शख्स खामोशी के साथ आरा की ये बात सुन रहा होता है। आरा ये कहते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने ही लगती है तो वो शख्स कहता है कि रुकें, मेरी बात एक बार सुन लें, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, ऐसा मुझे छोड़कर मत जाएं। ये सुनकर आरा उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और उससे कहती है कि मेरी जान छोड़ दे, मुझे यहाँ से जाना है। आप खामोशी के साथ अपने ऑफिस की तरफ निकल जाएं तो बेहतर होगा, मुझे मजीद तंग ना करें तो अच्छा है। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और फिर वो खामोशी के साथ वहां से रवाना हो जाता है और आरा भी अपनी गाड़ी लेते हुए अपने काम की तरफ रमा दमा हो जाती है। गाड़ी का शीशा खोलने से पहले वो कुछ अल्फाज उस शख्स से कहती है तो वो जवाब नहीं देता। इसके बाद हम मंजर देखते हैं जहां पर एक खातून एक पुलिस थाने के अंदर, जिसके चेहरे पर नकाब ढका होता है, आंखों पर चश्मा होता है, शायद वो किसी से अपना मुंह छुपा रही होती है। हम देखते हैं कि आसो पासो जेल खाना होता है, हर तरफ जेल में कैदी कैद होते हैं, लेकिन वो एक मखसूस कैदी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही होती है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि शायद वो किसी कैदी से मिलना चाहती है। जैसे ही वो सरमद शाह के करीब जाती है तो सरमद शाह को मालूम हो जाता है कि मुझसे कोई मिलने आया है। वो अपने बिस्तर पर सोया होता है और जैसे ही वो खातून अपने चेहरे से नकाब उतारती है तो सरमद शाह हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये मुझसे यहाँ पर मिलने क्यों आई है। वो औरत आहिस्तगी से अपना चश्मा उतारती है और चश्मा उतारने के बाद वो सरमद शाह की तरफ देखती है। सरमद शाह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पर आखिर क्या काम है? मुझसे तुम क्यों मिलने आई हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो खातून कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाती है और सरमद शाह को कोई जवाब नहीं देती कि आखिर वो इससे मिलने क्यों आई है, और वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। सरमद शाह उससे बार बार यही सवाल कर रहा होता है कि मुझे बताओ, तुम मुझसे आखिर मिलने क्यों आई हो? कोई तो वजह तो होगी ना, मुझे वजह तो बताओ ताकि मैं वजह जान सकूं। वो खातून कहती है कि हाँ, वजह है, एक वजह है जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ पर पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है और कुर्सी पर बैठने के बाद वो कहती है कि हाँ, ज़रूर वजह है जो मैं तुम्हें यहाँ पर बताने आई हूँ, और वजह ये है कि तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो कि सरमद शाह, मैं तुमसे अगर यहाँ पर मिलने आई हूँ तो ज़रूरी काम ही होगा मेरा, क्योंकि जो मैं सुनती आ रही हूँ वो सब यही है। सरमद शाह कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये मेरी एक बड़ी गलती थी और मैं अपनी गलती को दोबारा ज़रूर सुधारूंगा अगर तुम मुझे मौका दोगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे ज़रूर एक बार मौका दोगी। मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं हक पर हूँ और मैंने कभी भी झूठ तुमसे नहीं बोला है। ये बात कहकर वो कुछ देर के लिए दोबारा से खामोश हो जाता है, लेकिन उसे ये मालूम ही नहीं होता कि आखिर वो इस बार क्यों खामोश हुआ है। और दोबारा से वो उस खातून से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने आरा से दोबारा शादी कर ली थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मैं इस गलती को सुधार रहा हूँ। अभी भी मैं इस गलती का अजाला भुगत रहा हूँ।
अगर मैं तुम्हें ना छोड़ता तो मुझ पर ये दिन ना आते। वो खातून कहती है कि अब भी तुम्हारी आंखों में मुझे झूठ और मक्कारी नजर आ रही है। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि एक बार फिर तुम मेरे ख्यालात और जज्बात का फायदा उठा रहे हो। मुझे तुम्हारी आंखों से यही मालूम हो रहा है जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो, या यहाँ से आज़ादी के बाद जो तुम मेरे साथ करोगे, क्योंकि आरा से शादी करने के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया था, मेरे बच्चों को तुमने छोड़ दिया था, और आरा ने जो तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे सामने है। उसने तुम्हारी तमाम जायदाद को अपने नाम कर लिया है। वो सुकून की जिंदगी जी रही है और तुम यहाँ पर जेल की सलाखों के पीठ से चक्की पीस रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए उसने अजीरन कर दी है और फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। वो कहता है सरमद शाह कि मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। मेरी आंखों पर उसने मोहब्बत की पट्टी बांध दी थी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत किया है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ ये ना करता तो मैं जेल की सलाखों के पीछे ऐसा तन्हा तन्हा ना बैठा होता। आज मैं भी अपने घर में तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन मैंने एक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही की है कि मैंने आरा को अपनी जिंदगी में जगह दी है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा। मैंने तुम्हारे वालिद से बात की है और तुम्हारे वालिद से मैंने सुलह का हाथ भी आगे बढ़ाया है। तुम्हारे वालिद ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो मुझे एक अच्छे वकील के साथ मेरी मुलाकात कराएगा और बहुत जल्द वो मुझे जेल से बाहर निकाल लेगा। जिसके जवाब में वो खातून कहती है कि हाँ, अगर मेरा वालिद तुम्हारे पास आया है और उसने तुम्हारे साथ मुलाकात की है तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसके पीछे एक बड़ी वजह थी, और वो वजह हूँ मैं। हाँ, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। मैंने ही इन्हें अपने वालिद से कहा था कि वो तुम्हारे साथ मुलाकात करे। इसीलिए मेरा वालिद पिछले तमाम तुम्हारे गुनाहों को भुलाते हुए तुम्हारे पास यहाँ जेल में मिलने आया। बहरहाल तुम इसके काबिल तो नहीं थे, लेकिन बार बार मेरे इसरार करने पर मैंने अपने वालिद को आखिरकार इस बात पर राजी कर लिया था कि वो तुम्हें इस जेल से आज़ाद कराए। इसी के साथ वो कुर्सी से उठते हुए उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ये आखिरी तुम्हारे लिए मौका होगा। मैं ये बात भी जानती हूँ कि उसने पुलिस को तमाम हकूक और सचो सुबात बता दिए हैं। अब तुम्हारी मर्जी है। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा इकदाम उठा लिया तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुम्हें फांसी भी हो सकती है। अगर तुम्हें फांसी हो गई तो तुम जानते हो तो तुम फिर किसी काम के नहीं। इसीलिए मैंने अपने वालिद को बार बार इस बात के लिए मनाया है कि वो एक बार तुम्हारे साथ मुलाकात करे और एक अच्छे वकील को तुम्हारे लिए हायर करे, ताकि तुम्हारे साथ वो वकील तुम्हारी आज़ादी का परवाना तुम्हारे पास ला सके। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और अपनी साबका बीवी का शुक्रिया अदा करने लगता है और उससे कहता है कि ये बात ज़रूर होगी, और बीवी उससे पैर पकड़वाती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। जब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मेरे दिल में एक दिली सुकून पैदा होगा, और इसी सुकून की वजह से मैं सोचूंगी कि तुम्हें आज़ाद कराना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो सलूक तुमने मेरे साथ इख्तियार किया था वो सलूक बिल्कुल नारमा है, यानी कि बिल्कुल भुलाने के काबिल नहीं है। और इसी वजह से मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि जो सलूक तुमने मेरे साथ इख्तियार किया है वो सलूक बिल्कुल भुलाने के काबिल नहीं है, और ना ही मैं कभी वो तुम्हारा किया गया सलूक मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ जो तुमने सलूक इख्तियार किया है वो सलूक मैं बिल्कुल भी नहीं भुला सकती। तुम्हें ये बात याद रखनी होगी और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। हाँ, ये बात कहते हुए
वो जेल से बाहर चली जाती है और पीछे सरमद शाह उसकी तरफ देख रहा होता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि मोमा कहीं जा रही होती है तो वो उसे आवाज़ लगाता है। इसका नाम आरा होता है। वो उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मुझे भी ऑफिस की तरफ जाना है। और इसी के साथ वो कहता है, मुझे वाकई बहुत अफसोस है कि मैंने आपके साथ बुरा सलूक किया, मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की। मुझे इस बात पर काफ़ी ज़्यादा अफसोस है। मुझे इन अल्फाजों के साथ आपको मुखातिब नहीं करना चाहिए था। जो मैंने आपसे अल्फाज कहे हैं, इन अल्फाजों पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उस वक्त मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। ये सुनकर वो खातून कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाती हैं और अपनी खामोशी तोड़ने के बाद वो उससे मुखातिब होकर कहती है, तुमने अच्छी बात की है, तुमने जो भी कहा है ठीक कहा है, तुमने अच्छा किया कि मुझे मेरी जगह दिखाई है। हाँ, ये सुनकर वो शख्स मज़ीद शर्मिंदा हो जाता है और अपनी नज़रों को झुका लेता है कि आखिर मैंने इनसे कौन से ऐसे अल्फाज कहे हैं जिसकी वजह से ये कह रही हैं कि आपने अच्छा कहा है, बल्कि ये तो कह रही हैं कि मैंने इन्हें अपनी औकात दिखा दी है। कैसी औकात? भला मैंने तो इनसे कुछ ऐसे अल्फाज भी नहीं कहे जिनकी वजह से इनकी काफ़ी तजलील हुई हो। वो खातून अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, बहुत सालों बाद मैंने किसी से सच्ची बात कही है। हाँ, ये बात मैं आपसे कह दूं, मैं क्लाउड 9 पर था। शुक्रिया, तुमने मेरे परों को काट दिया है। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए तो सुन सा हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये खातून मुझसे चाहती क्या है, आखिर मुझसे ये इस किस्म की बातें क्यों कर रही है। ये सुनकर उसका जिस्म सुन सा हो जाता है और वो खामोशी के साथ उस खातून की तमाम बातों को सुन रहा होता है। वो खातून मज़ीद अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मैं फिर कभी किसी से भी सच्ची बात और ना ही मोहब्बत करूंगी। ये सुनकर वो अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगती है तो ये शख्स अपनी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए उस खातून से कहता है, मैं आपके जज्बात को समझ सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने आपके जज्बात को ठेस पहुँचाया है। मेरा हरगिज़ उस वक्त ये मतलब नहीं था कि आपके जज्बात को मैं रोंद डालूं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। आपने मुझसे जो कहा है मैं आपकी बात मानता हूँ। मुझे बिल्कुल आप पर पूरा भरोसा है कि आखिर आप कहना क्या चाह रही थी, लेकिन मेरा हरगिज़ वो मतलब नहीं था जिसको आप समझ रही हैं। जिसके जवाब में वो खातून कहती है कि नहीं, आपने सही कहा है, जो भी आपने कहा है, अगर कोई और भी होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही कहता। आप एक शादीशुदा हैं और आपका हक बनता है कि आप उस वक्त मुझे यही अंदाज और इसी अंदाज से मना करते। और इसी के साथ वो कहती हैं कि कम से कम कोई आदमी कभी नहीं समझ सकता, हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरा बाप, ना मेरा भाई, ना मेरी माँ और ना ही मेरी बहन, हत्ता कि अपने रिश्ते भी मुझे समझ नहीं पाए और ना ही मैं उन्हें समझा सकी हूँ। आज अगर मैं यहाँ पर ठहरी हूँ तो अपने बलबूते पर ठहरी हूँ। मेरा साथ आज तक किसी ने नहीं दिया, हर कोई मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, हर कोई मुझे मना कर रहा था। अगर मैं आज यहाँ पर ठहरी हूँ तो अपने बलबूते पर ठहरी हूँ। मुझे किसी ने सहारा नहीं दिया, अगर मुझे सहारा दिया है तो वो मैं खुद ही हूँ, जिसे मैंने खुद को सहारा देकर आज इस मकाम तक लाया है। वो कहती है, ना सरमद, ना शाहजहां, ना तुम, कोई भी नहीं। सब समझते हैं कि मैं बुरी औरत हूँ,
सब यही कहते हैं। मेरे अंदाज, मेरी चाल चल लोग देखते हैं तो मुझे यही कहते हैं कि मैं एक बुरी औरत हूँ, लेकिन मेरे अंदर से कोई वाकिफ नहीं, मेरा अल्लाह जानता है। वो मजीद कहती है कि अकेली औरत पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है और आप भी उसी वक्त मुझ पर यही इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। आपने झूठ बोला है। जो भी आपने कहा है, पहले अकेली औरत को फतह करो, फिर उसे दुनिया की तरफ से लात मारने के लिए तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है। यहाँ पर आरा उसे अपने जंगल में फंसा रही होती है और वो शख्स खामोशी के साथ आरा की ये बात सुन रहा होता है। आरा ये कहते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने ही लगती है तो वो शख्स कहता है कि रुकें, मेरी बात एक बार सुन लें, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूं, ऐसा मुझे छोड़कर मत जाएं। ये सुनकर आरा उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है और उससे कहती है कि मेरी जान छोड़ दें, मुझे यहां से जाना है। आप खामोशी के साथ अपने ऑफिस की तरफ निकल जाएं तो बेहतर होगा, मुझे मजीद तंग ना करें तो अच्छा है। ये सुनकर वो शख्स कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और फिर वो खामोशी के साथ वहां से रवाना हो जाता है और आरा भी अपनी गाड़ी लेते हुए अपने काम की तरफ रमा दमा हो जाती है। गाड़ी का शीशा खोलने से पहले वो कुछ अल्फाज उस शख्स से कहती है तो वो जवाब नहीं देता। इसके बाद हम मंजर देखते हैं जहां पर एक खातून एक पुलिस थाने के अंदर, जिसके चेहरे पर नकाब ढका होता है, आंखों पर चश्मा होता है, शायद वो किसी से अपना मुंह छुपा रही होती है। हम देखते हैं कि आसो पासो जेल खाना होता है, हर तरफ जेल में कैदी कैद होते हैं, लेकिन वो एक मखसूस कैदी की तरफ अपने कदम बढ़ा रही होती है। यहाँ पर हमें मालूम होता है कि शायद वो किसी कैदी से मिलना चाहती है। जैसे ही वो सरमद शाह के करीब जाती है तो सरमद शाह को मालूम हो जाता है कि मुझसे कोई मिलने आया है। वो अपने बिस्तर पर सोया होता है और जैसे ही वो खातून अपने चेहरे से नकाब उतारती है तो सरमद शाह हक्का बक्का रह जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये मुझसे यहाँ पर मिलने क्यों आई है। वो औरत आहिस्तगी से अपना चश्मा उतारती है और चश्मा उतारने के बाद वो सरमद शाह की तरफ देखती है। सरमद शाह कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पर आखिर क्या काम है? मुझसे तुम क्यों मिलने आई हो? क्या तुम मुझे बता सकती हो? वो खातून कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाती है और सरमद शाह को कोई जवाब नहीं देती कि आखिर वो इससे मिलने क्यों आई है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती। सरमद शाह उससे बार बार यही सवाल कर रहा होता है कि मुझे बताओ, तुम मुझसे आखिर मिलने क्यों आई हो? कोई तो वजह तो होगी ना, मुझे वजह तो बताओ ताकि मैं वजह जान सकूं। वो खातून कहती है कि हाँ, वजह है, एक वजह है जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ। और इसी के साथ वो वहाँ पर पड़ी कुर्सी पर बैठ जाती है और कुर्सी पर बैठने के बाद वो कहती है कि हाँ, ज़रूर वजह है जो मैं तुम्हें यहाँ पर बताने आई हूँ। और वजह ये है कि तुम ये बात अच्छी तरह से जान लो कि सरमद शाह, मैं तुमसे अगर यहाँ पर मिलने आई हूँ तो ज़रूरी काम ही होगा मेरा, क्योंकि जो मैं सुनती आ रही हूँ वो सब यही है। सरमद शाह कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये मेरी एक बड़ी गलती थी और मैं अपनी गलती को दोबारा ज़रूर सुधारूंगा अगर तुम मुझे मौका दोगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे ज़रूर एक बार मौका दोगी, मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं हक पर हूँ और मैंने कभी भी झूठ तुमसे नहीं बोला है। ये बात कहकर वो कुछ देर के लिए दोबारा से खामोश हो जाता है, लेकिन उसे ये मालूम ही नहीं होता कि आखिर वो इस बार क्यों खामोश हुआ है। और दोबारा से वो उस खातून से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें छोड़ने के बाद मैंने आरा से दोबारा शादी कर ली थी और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी
और मैं इस गलती को सुधार रहा हूँ। अभी भी मैं इस गलती का अजाला भुगत रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें ना छोड़ता तो मुझ पर ये दिन ना आते। वो खातून कहती है कि अब भी तुम्हारी आंखों में मुझे झूठ और मक्कारी नजर आ रही है। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि एक बार फिर तुम मेरे ख्यालात और जज्बात का फायदा उठा रहे हो। मुझे तुम्हारी आंखों से यही मालूम हो रहा है जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो, या यहाँ से आज़ादी के बाद जो तुम मेरे साथ करोगे, क्योंकि आरा से शादी करने के बाद तुमने मुझे छोड़ दिया था, मेरे बच्चों को तुमने छोड़ दिया था, और आरा ने जो तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारे सामने है। उसने तुम्हारी तमाम जायदाद को अपने नाम कर लिया है। वो सुकून की जिंदगी जी रही है और तुम यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लिए उसने अचीरन कर दी है और फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। वो कहता है सरमद शाह कि मुझसे बड़ी गलती हो गई थी। मेरी आंखों पर उसने मोहब्बत की पट्टी बांध दी थी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत किया है। अगर आज मैं तुम्हारे साथ ये ना करता तो मैं जेल की सलाखों के पीछे ऐसा तन्हा तन्हा ना बैठा होता। आज मैं भी अपने घर में तुम्हारे और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता। लेकिन मैंने एक अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही की है कि मैंने आरा को अपनी जिंदगी में जगह दी है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी गलती को सुधार दूंगा। मैंने तुम्हारे वालिद से बात की है और तुम्हारे वालिद से मैंने सुलह का हाथ भी आगे बढ़ाया है। तुम्हारे वालिद ने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो मुझे एक अच्छे वकील के साथ मेरी मुलाकात कराएगा और बहुत जल्द वो मुझे जेल से बाहर निकाल लेगा। जिसके जवाब में वो खातून कहती है कि हाँ, अगर मेरा वालिद तुम्हारे पास आया है और उसने तुम्हारे साथ मुलाकात की है तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसके पीछे एक बड़ी वजह थी, और वो वजह हूँ मैं। हाँ, तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए। मैंने ही इन्हें अपने वालिद से कहा था कि वो तुम्हारे साथ मुलाकात करे। इसीलिए मेरा वालिद पिछले तमाम तुम्हारे गुनाहों को भुलाते हुए तुम्हारे पास यहाँ जेल में मिलने आया। बहरहाल तुम इसके काबिल तो नहीं थे, लेकिन बार बार मेरे इसरार करने पर मैंने अपने वालिद को आखिरकार इस बात पर राजी कर लिया था कि वो तुम्हें इस जेल से आज़ाद कराए। इसी के साथ वो कुर्सी से उठते हुए उसके पास जाती है और उससे कहती है कि ये आखिरी तुम्हारे लिए मौका होगा। मैं ये बात भी जानती हूँ कि उसने पुलिस को तमाम हकूक और सचो सुबात बता दिए हैं। अब तुम्हारी मर्जी है। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा इकदाम उठा लिया तो तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए कि तुम्हें फांसी भी हो सकती है। अगर तुम्हें फांसी हो गई तो तुम जानते हो तो तुम फिर किसी काम के नहीं। इसीलिए मैंने अपने वालिद को बार बार इस बात के लिए मनाया है कि वो एक बार तुम्हारे साथ मुलाकात करे और एक अच्छे वकील को तुम्हारे लिए हायर करे, ताकि तुम्हारे साथ वो वकील तुम्हारी आज़ादी का परवाना तुम्हारे पास ला सके। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और अपनी साबका बीवी का शुक्रिया अदा करने लगता है और उससे कहता है कि ये बात ज़रूर होगी, और बीवी उससे पैर पकड़वाती है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो। जब तुम इससे माफ़ी मांगोगे तो मेरे दिल में एक दिली सुकून पैदा होगा, और इसी सुकून की वजह से मैं सोचूंगी कि तुम्हें आज़ाद कराना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो सलूक तुमने मेरे साथ इख्तियार किया था वो सलूक बिल्कुल नारमा है, यानी कि बिल्कुल भुलाने के काबिल नहीं है। और इसी वजह से मैं तुमसे बार बार कह रही थी कि जो सलूक तुमने मेरे साथ इख्तियार किया है वो सलूक बिल्कुल भुलाने के काबिल नहीं है, और ना ही मैं कभी वो तुम्हारा किया गया सलूक मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ जो तुमने सलूक इख्तियार किया है वो सलूक मैं बिल्कुल भी नहीं भुला सकती।
तुम्हें ये बात याद रखनी होगी और तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए। हाँ, ये बात कहते हुए वो जेल से बाहर चली जाती है और पीछे सरमद शाह उसकी तरफ देख रहा होता है।